ظہر میں جنازہ کرنا ہے تو اثر میں 12 بجے. بھائی اگر میر کھانے پینے کا انتظام دیکھ لینا, چاندنی وغیرہ آئے گی وہ بھی دیکھ لینا. وہ دریا اور میں تو 4 بجے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ بتا دیا. وہ ابو کا ہے, چھوڑ سکتے تم دونوں میں سے کسی کو ان کے پاس ہونا. ابو کمرے میں. پلیز اس وقت ابو کو ہم اکیلا نہیں, یہ سب رشتہ داروں کو بتا دیا نا. جنازہ ظہر کے بعد ہے نا؟ اس کے بعد آریان بھائی ابھی قبرستان کر ظہر کی نماز. بیٹا نماز اور میں کے لیے شاویر بھی سرد کھانے جا رہے ہیں, امی کو لانے گئے ہوئے ہیں تدفین کے انتظامات کرنے کے لیے. اپنی بہن کے بارے میں ایسا سننے جا رہے ہیں کہ ہم آپا کو دفن. عجیب سا لگ رہا ہے. کیوں یہ سب اللہ کے کام ہے. وہ موت کی آغوش میں سو گئی. میری بہن تو زندگی سے بھرپور تھی. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے جانے کا وقت مقرر کروا کر ہی آتا ہے. بس ان کی اتنی ہی زندگی تھی, منزلیں آسان کرے. اب دعا کریں کہ اللہ ان کی آگے کی مقام دے. آمین. اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام. اس کی مرضی کے آگے کچھ بھی نہیں چلتا. آج ہی یہاں سے نکلنا ہوگا. مجھے اس کا تلاش تھی. ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی مجھے سالوں سے. یہ بیگ جو ہے یہ بالکل ٹھیک رہے گا. ہمیں امی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کلمہ شہادت. ہم امی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امی کو کہاں لے کے جا؟ کمرے میں چل. کیا ہو گیا تجھے؟ منوس تیرے گھر والے کب سے ہو گئے یہ؟ دیکھ لی نا, میں ساری گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. مجھے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی. کمرے میں فوراً پہنچ. کرو صبر کرو میری بچی, صبر. بڑی آئی گھر والے اور خاندان والی. جلدی سے اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان مجبور ہو جائے. وہ بہت اچھی تھی. جاتا ہے میرا بچہ. جانے کا دکھ ہم سب کو ہے, لیکن کیا کروں؟ اس کی بیٹی سمجھا, انہوں نے کبھی مجھے اپنی بہو نہیں, ان کے جانے کا دکھ برداشت ہی نہیں ہوتے سے زیادہ مجھ سے محبت کیا. وہ بھی ہر خوشی پہ ایسے وہ آپ جانتی ہیں اپنے سگے پہ. انہوں نے مجھے کبھی بے اولادی کا تانا نہیں دیا. سے کام لو, اللہ سے دعا کرو. ہمیشہ مجھے سمجھایا کہ بیٹی صبر. ساس ہونے کے باوجود میری کمی کا احساس ہونے ہی نہیں دیا مجھے. آنٹی نے مجھ پہ بھی کبھی تمہاری گود ضرور بھرے گی. جانا چاہتی تھی, مجھے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی. میر تک کی بھی ذمہ داری خود سنبھال لی تھی. میری ماما بھی بیمار تھی تو انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. جہاں جانا چاہتی تھی. ہاں, اپنے سسر کا خیال رکھنا. اب تم سب نے اس گھر کا خیال رکھنا. مجھے اف تک نہیں کہی. ہم دونوں آج کے آج یہاں سے نکلیں گے. جنازے میں مصروف ہیں, ہم اس گھر کا صفایا. سن, سب اس وقت کہیں جا رہی ہے؟ میں نہیں جا رہی. پکڑے جائیں گے, صرف نقصان ہوگا. دیکھ مانور کرتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں. دیکھ, ہم دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. کیا کہہ رہی ہے اماں تو؟ سے اچھا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا. اور کافی مال پڑا ہوا ہے. میں سوچ ممبر کے کمرے میں گئی تھی اور اس وقت سب غم میں مصروف ہیں. اس بات صفایا کرتی ہوں, تجھے میری مدد کرے. نہیں اماں, میں دیکھنی پڑے گی. اور ہم آج ہی یہاں سے نکلیں گے. کہ باقیوں کے کمرے میں بھی جا کے نا, آج سے پہلے کبھی پکڑے گئے ہم جو اب پکڑے. ہم دونوں پکڑے جائیں گے. تو چپ رہے بس. مجھے نہ جانے کیوں ڈر لگ رہا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو خوشی ریویو. ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے. تو ناظرین بات کریں گے آج ہم ڈرامہ سیریل میری بہوئیں کی آنے والی ایپیسوڈ کی, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب امبر جو اس پورے خاندان کی جان تھی, معتبر, سلیقہ شعار اور ایک ہمت والی خاتون تھیں,
وہ اب اس دنیا سے اپنی فیملی کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہیں۔ ناظرین، جب عنبر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عنبر کی پوری فیملی جیسے بکھر سی گئی ہے، ٹوٹ سی گئی ہے، اور عنبر کے تینوں بچے بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں کہ آریان شاویر سے کہتا ہے، شاویر امی کی ڈیڈ باڈی گھر کب لائیں گے؟ تو شاویر روتے ہوئے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی اگر ظہر کے بعد جنازہ کرنا ہے تو 12 بجے، اور شاویر بہت رو رہا ہوتا ہے، اسے بولا نہیں جا رہا ہوتا، اور ہمت کر کے پھر آگے بولتا ہے کہ اگر عصر کے ٹائم جنازہ کرنا ہے تو پھر 4 بجے۔ اس کی بات سن کے المیر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب ماں کے جنازے کا نام لیتے ہیں تو شاویر بھی آنکھیں بند کر کے روتا ہے، اور المیر تو بالکل چپ سا بیٹھا ہے جیسے کسی سکتے کی حالت میں۔ اور پھر آریان المیر سے کہتا ہے کہ المیر کھانے پینے کا انتظام دیکھ لینا۔ المیر بالکل چپ ہو کے آریان کا منہ دیکھتا ہے، اور مزید آریان کہتا ہے اور یہ دریاں اور چٹائیوں کا بھی؟ تو المیر کہتا ہے جی بھائی۔ پھر آریان کہتا ہے کہ باقی بھی انتظامات دیکھنے ہوں گے، اور خاندان میں سب کو بتا دیا ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جس پہ المیر کہتا ہے جی بھائی سب کو بتا دیا ہے، اور ساتھ رو رہا ہوتا ہے۔ پھر آریان کو جیسے ابو کا خیال آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابو کدھر ہیں؟ تو اس بات پہ المیر جواب دیتا ہے آریان کو کہ ابو اپنے کمرے میں ہوں گے۔ جس پہ آریان کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل ٹائم ہے ہم سب کے لیے، لیکن ابو کے لیے تو بہت ہی مشکل ٹائم ہے، تو ہم ایسی حالت میں اس ٹائم میں ابو کو اکیلا بالکل نہیں چھوڑ سکتے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تم دونوں بھائیوں میں سے ایک آدھ ابو کے ساتھ لازمی رہے، ابو کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جس پہ شاویر اور المیر سر ہلا دیتے ہیں، اور آریان پھر دونوں بھائیوں سے مزید کہتا ہے کہ میں قبرستان جاتا ہوں، امی کے لیے وہ جگہ دیکھتا ہوں جہاں امی کو آرام سے ہم نے آخری منزل تک پہنچانا ہے، امی کے لیے قبر کی جگہ دیکھنی ہے۔ جب آریان یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو شاویر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور المیر بھی جیسے ایک دم سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور المیر کے اندر جیسے ایک کرب سا ہے، اور المیر کہتا ہے کہ جی بھائی امی، سوچا نہیں تھا کبھی ہم نے یہ کہ امی کے لیے قبر کی جگہ اب ڈھونڈنا جانا پڑے گا۔ یہ بات کہتا ہے تو شاویر مزید روتا ہے، اور پھر المیر مزید کہتا ہے کہ امی ہمیشہ کہا کرتی تھیں میرے بچوں دعا کرو کہ میری اگلی منزل آخری سفر بہت آسان ہو۔ اور پھر المیر مزید کہتا ہے اور بھائی دیکھنا آج ہم امی کو وہی آخری سفر کروا رہے ہیں۔ جب المیر یہ بات کہتا ہے تو شاویر بہت زیادہ روتا ہے، اور آریان بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، اور پھر شاویر کہتا ہے کہ امی ہمیشہ ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھیں، ہماری ہر چیز کا خیال رکھتی تھیں، اور دیکھنا یہاں تک کہ امی ہمارے جوتے تک خود سنبھال کے رکھتی تھیں، اور المیر آج تم دیکھو نا امی کے جوتے باہر پڑے ہیں۔ جب شاویر یہ بات کرتا ہے تو وہ تینوں بھائی بہت زیادہ روتے ہیں، اور شاویر مزید یہ کہتا نظر آتا ہے کہ امی کے جوتے باہر پڑے ہیں اور وہ خود یہاں سے جانے کو تیار ہیں، ان کا آخری سفر ہے۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو آریان روتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے اب دعا کون کرے گا، اور ساتھ روتا بھی ہے اور اپنی آنکھیں صاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے لیے تو دعا کرنے والا اب کوئی رہا ہی نہیں۔ لیکن مجھے ابھی بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امی کی آواز کہیں نہ کہیں سے میرے کانوں میں گونجے گی، مجھے امی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہاں سے یا ادھر سے گھر میں کے کسی بھی کونے سے امی چلتے ہوئے میرے سامنے آئیں گی اور مجھے پکاریں گی۔ آریان ایسے کہتا ہے، اور جب آریان یہ بات کرتا ہے کہ امی ادھر سے چلتے ہوئے مجھے نظر آئیں گی، تو جس طرف آریان چلنے کا اشارہ کرتا ہے شاویر اس نظر دیکھتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیتا ہے، اور پھر آریان اپنی آنکھیں صاف کرتا ہے اور کہتا ہے میں ہمت کر کے قبرستان جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ہماری امی کا آخری سفر ہے اور ہم نے ان کا یہ آخری سفر بہت پروقار بنانا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں، آریان کہتا ہے کہ ہماری امی کا یہ آخری سفر ہے، تو المیر کے دل میں جیسے کرب سا اٹھتا ہے اور وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور شاویر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، اور آریان دونوں بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ماں صرف جنت نہیں دیتی بلکہ وہ زندگی جیتی بھی ہے، اور ہم ان کا آخری فقرہ بننے جا رہے ہیں۔ اور پھر ناظرین دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مانور اور اس کی ماں کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور مانور اپنی امی سے کہتی ہے کہ اماں کیا بات ہے، تو نے مجھے یہاں کیوں بلا لیا، کیوں لے کے آ گئی مجھے کمرے میں، تو نے دیکھا ہے نا باہر کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو مانور کی امی اس بات پہ
चिढ़ जाती है और मानूर को कहती है ये जो बाहर बैठे हैं तेरा ख़ानदान लगता है क्या, ये तेरा ख़ानदान नहीं है, चुप करके बैठो, मैंने तुम्हें पता है ना यहाँ किसी मकसद के लिए बुलाया है और तुम्हारा ख़ानदान जस्ट मैं हूँ। जब ये दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रही होती हैं तो कमरे के दरवाज़े की आवाज़ आती है और मानूर की माँ, जब दरवाज़े की आवाज़ आती है तो मानूर की माँ सर दर्द का बहाना करके लेट जाती है और मानूर भी फ़ौरन अपनी माँ के माथे पे हाथ रख लेती हैं। तो नाज़रीन उस वक्त शाविर कमरे में आता है जो मानूर और उसकी माँ को कमरे में देख के बहुत हैरान होता है और हैरानगी से पूछता है कि तुम लोग यहाँ हो, वहाँ नहीं हो बंदों में जहाँ बाकी औरतें बैठी हैं। तो बहुत शाविर जब ये बात करता है तो मानूर एकदम से कहती है शाविर अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं इनको लेके कमरे में आ गई हूँ। तो शाविर परेशान और हैरान भी होता है, जिस पे मानूर की माँ कहती है शाविर बेटा मेरे सर में बहुत दर्द था, और फिर साथ फरियादें करती है हाय अल्लाह मेरे सर का दर्द, ऐसे कह रही होती है। और शाविर को तसल्ली देने के लिए कहती है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं कमरे में आ गई हूँ, और साथ फिर ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर देती है, एक्टिंग करती है रोने की और कहती है क्या होगा शाविर मुझे बहुत दुख है, मेरी तो तबीयत नहीं संभल रही। और जब वो ऐसे रोने धोने का नाटक कर रही होती हैं तो शाविर कहता है मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, मेरी तो माँ ही मुझे छोड़ के चली गई, मैं अपनी दुख सुख अब किससे कहूँगा। तो जब शाविर ये बोलता है तो मानूर बहुत परेशान और अपसेट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानूर के दिल में शाविर की मोहब्बत जाग उठती है और मानूर अब चाहती है कि वो अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी शाविर के साथ गुजारे, लेकिन उसकी अम्मा उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करने दे रही अभी तक। और जब शाविर ये कहता है कि मैं अपने दुख सुख किससे करूँगा तो मानूर कहती है कि शाविर परेशान ना हो, और मानूर की माँ फ़ौरन कहती है कि इधर आ मेरे बच्चे, यहाँ बैठ मेरे पास। जब शाविर उनके पास बेड पे बैठता है तो मानूर की माँ कहती है बेटा बेशक मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम लोग को हिम्मत करनी होगी। और मानूर कहती है शाविर आप परेशान ना हो, यही ज़िंदगी की हकीकत है, एक दिन सब ने जाना है। मानूर शाविर को अपनी तरफ से तसल्ली दे रही होती है और मानूर की माँ जो एक्टिंग कर रही होती है वो मज़ीद कहती है कि शाविर बेशक बेटा मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ लेकिन मैं भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना तुम्हें तुम्हारी माँ चाहती थी। जब वो ये बात करती है तो शाविर जैसे कर्ब से आंखें बंद कर लेता है और वो मानूर फिर शाविर से कहती है कि शाविर प्लीज़ ख़ुद को संभालो, तुम परेशान ना हो। जिस पे शाविर ख़ुद को कुछ रिलैक्स करता है और फिर मानूर से कहता है अच्छा सुनो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम्हारे पास 1 लाख रुपए होंगे। जब शाविर पैसों का नाम लेता है तो मानूर की माँ एकदम से मानूर का हाथ झटक देती है और हैरान होकर मानूर को देखती है। मानूर की माँ चाहती है कि मानूर मना कर दे पैसों का, लेकिन ये टाइम ऐसा था और कुछ मानूर के दिल में इंसानियत जागी हुई है, जिस पे मानूर कहती है हाँ पैसे हैं ना, कितने चाहिए। जिस पे शाविर कहता है कि मुझे भी 1 लाख रुपए चाहिए। तो मानूर माँ को देखती है, उसकी माँ आंखों के इशारे से मानूर पे गुस्सा करती है, लेकिन मानूर उठ के कहती है जी मेरे पास हैं, मैं अभी आपको देती हूँ। मानूर अपनी माँ को देखती है और फिर उसकी माँ उसे फिर भी मना करने का इशारा कर रही होती है, जिस पे मानूर अपनी माँ को आंखें निकाल के उठ जाती है शाविर को पैसे देने के लिए। और नाजरीन फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जब मानूर पैसे लेने के लिए उठती है तो उसकी माँ उसे हाथ के इशारे से भी तब भी मना कर रही होती है, लेकिन मानूर माँ का इशारा अनदेखा करके उठ जाती है और शाविर को पैसे लाने के लिए। तो मानूर की माँ पीछे शाविर के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिलके इस मुश्किल घड़ी से, इस तकलीफ़ और दुख के लम्हे से हम मिल के सब इंशाल्लाह निकल जाएंगे। बस तुमने परेशान नहीं होना, तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी, हम सब साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो ये बातें कर रही होती है तो शाविर जैसे फिर से रोने लगता है और मानूर की माँ पीछे मुंह बना रही होती है। नाजरीन उसके बाद आप देखते हैं कि अलमीर बाहर खड़ा होता है, अलमीर के साथ उसके मामू, फबीहा के अब्बू और राहिम के अब्बू ये सब खड़े होते हैं। और राहिम के अब्बू अलमीर से पूछते हैं कि बेटा जनाज़ा कितने बजे है। तो अलमीर जवाब देता है कि जी अंकल ज़ोहर की नमाज़ के बाद है जनाज़ा। और जब जनाजे का नाम लेता है तदफीन का तो मुस्कान के अब्बू जो अंबर के भाई हैं वो वहीं खड़े रो पड़ते हैं फिर से। और अलमीर मज़ीद बताता है राहिम के अब्बू को कि आर्यन भाई कब्रिस्तान गए हैं इंतज़ामात देखने
और अभी मैं और शाविर भी हॉस्पिटल चले जाएंगे अम्मी की डेड बॉडी लेने। जब वो ये बात करता है तो मुस्कान के अब्बू बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, जिस पे फबीहा के अब्बू पास खड़े मुस्कान के अब्बू को तसल्ली देते हैं और कहते हैं हिम्मत से काम लें। तो मुस्कान के अब्बू कहते हैं कि मेरी बड़ी बहन, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो हमें इस दुनिया से छोड़ के चली जाएंगी। वो तो ज़िंदगी से भरपूर थी, फिर उनके साथ ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे हम सबको इतने जल्दी छोड़ के जा सकती हैं। जब मुस्कान के अब्बू ये सारी बातें कर रहे होते हैं तो अलमीर भी वहाँ खड़ा मौजूद होता है और रोने लगता है, और जिस पे फबीहा के अब्बू कहते हैं कि भाई हौसला करें, शायद वो ज़िंदगी ही इतनी लिखवा के आई थी। ये अल्लाह कानूनी कुदरत है, जो बंदा दुनिया में आता है वो अपनी मौत का टाइम वहाँ से लिखवा के पक्का करके आता है। इंसान को नहीं पता होता कि वो घड़ी कब आनी है, लेकिन ये हकीकत है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसने एक दिन वापस जाना है। तो बहुत अच्छी खातून थी, आप बस उनके लिए दुआ करें और तसल्ली रखें। फबीहा के अब्बू मुसलसल मुस्कान के अब्बू को तसल्ली दे रहे होते हैं, जिस पे मुस्कान के अब्बू फबीहा के अब्बू के गले लग के मज़ीद रोते हैं। वो उनसे जैसे ये दुख सहा नहीं जा रहा होता, वो अपनी बहन की जुदाई, अपनी बहन की मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। और मुस्कान के अब्बू मज़ीद रोते हुए कहते हैं कि आज अपनी बहन को ऐसी हालत में देख के या ऐसा सुन के कि हम आपा को दफनाने जा रहे हैं, ये सब सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरी बहन तो ज़िंदगी से भरपूर थी, वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। वो रो रहे होते हैं मुसलसल, जिस पर फबीहा के अब्बू उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं बस भाई आप दुआ करें अब कि अल्लाह ताला भाभी की अगली मंजिलें आसान करे। जिस पे राहिम और अलमीर ईमान के अब्बू तीनों आमीन बोलते हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि फबीहा, ईमान, महक और ईमान की अम्मी, महक की अम्मी, सब फैमिली बैठी रो रही होती है, और वहाँ मानूर भी ईमान के पीछे बैठी अफसरदा मुँह बनाए बैठी होती है। नाज़रीन, एक तरफ तो ये पूरी फैमिली बैठी रो रही होती है अंबर के लिए, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मानूर की माँ जो पूरे घर में चक्कर लगा रही है, वो सबसे पहले अंबर के कमरे में जाती है, सबसे नज़रें छुपाते हुए। वो छुपते छुपाते जब अंबर के कमरे में पहुंच जाती हैं तो वो चीज़ों की तलाशी लेना शुरू कर देती हैं। डोर चेक करती है, आगे पीछे मज़ीद दराज, साइड टेबल सब चेक करती है। जब उसे कुछ नज़र नहीं आता तो वो मुँह बनाती है। खैर वो आगे जाती है कमरे में मज़ीद और अलमारी की तलाशी लेती है, और वहाँ पे उसे उसके मतलब की चीज़ें यानी कि पैसा, जेवर नज़र आ जाता है तो वो खुश हो जाती है और फिर वहाँ खड़े खुश हो जाती है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जहाँ मर्द हजरात सारे बाहर खड़े होते हैं, आर्यान शाविर और अलमीर को पास बुलाता है और कहता है कि शाविर तुम जाओ अंदर, बताओ कि तदफीन का वक्त होने वाला है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जब मानूर की माँ को जेवर और पैसा नज़र आ जाता है तो वो भागी भागी फिर अपने कमरे में आती है और एक बैग निकालती है। वो बैग से कपड़े निकाल के बेड पे रख रही होती है और साथ कहती है कि आज मुझे अपने मतलब की चीज़ नज़र आ गई, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। अब मुझे इस घर में वो सब कुछ मिल गया है जो मैं लेने आई थी। मैं ये सब कुछ लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी। और हाँ, ये बैग ठीक है, ये मुनासिब है। वो अपने आप से बातें कर रही होती है और कहती है ये बैग ठीक है, मुनासिब है, इसमें आ जाएंगी चीज़ें, और मैं इस घर में कुछ लिए बगैर ऐसे नहीं जाऊँगी। और अब हमारा इस घर से जाने का टाइम भी आ चुका है। और वो फिर कमरे से निकल के जाती है। और नाज़रीन, उसके बाद आप देखते हैं कि अलमीर, आर्यान भाई, ये तीनों और कुछ लोग अंबर का जनाज़ा उठाने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले फबीहा की नज़र पड़ती है मर्दों पे, और महक, ईमान ने जहाँ अंबर की मैयत के साथ सर रखे रो रही होती हैं, फबीहा महक के कंधे पे हाथ रखती है और महक जैसे सर उठाती है तो उसकी नज़र पड़ती है कि मर्द हजरात अंदर आए हैं जनाज़ा उठाने के लिए। तो महक से ये सब कुछ देखा ना गया, उससे बर्दाश्त ना हुआ, तो वो एकदम से रोती है और कहती है आर्यान, अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हो? आर्यान, बताओ प्लीज़, अम्मी को ऐसे ना लेके जाओ, मैं अम्मी के बगैर नहीं रह सकूँगी। महक बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो दूसरी तरफ जैसे ईमान की भी हालत बहुत बुरी होती है, फबीहा अलग सदमे में होती है, उसे भी बहुत तकलीफ़ होती है। ये तीनों बहुत रो रही होती हैं और महक तो बार बार यही कह रही होती है कि अम्मी को लेके ना जाएं, अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं, अम्मी हमें अकेला छोड़ के ना जाएं।
मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी, अम्मी प्लीज़ ऐसा ना करें। महक की हालत बहुत ख़राब होती है नाज़रीन। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मर्द हजरात कलमा शहादत कहते हुए अंबर का जनाज़ा उठा लेते हैं और अंबर की तीनों बहुओं की हालत बहुत ख़राब होती है। उसके बच्चे भी बहुत रो रहे होते हैं। मर्द जब जनाज़ा उठा के बाहर आते हैं तो आसिफ साहब जो अभी तक सिकते की हालत में हैं, गुमसुम से, वो राहिम के अब्बू उनको सहारा दिए हुए लेके जाते हैं। नाजरीन, इस वक्त ये पूरी फैमिली टूट सी गई है अंबर के जाने से। इन सब का बहुत बुरा हाल है। आसिफ साहब अलग परेशान, उनके बच्चे जैसे बिखर से गए हैं, टूट से गए हैं। और आर्यान ही है जो अभी तक कुछ हिम्मत जताए हुए है, कुछ हिम्मत करे हुए है। बाकी शावीर और अलमीर तो जैसे एक कर्ब में मुब्तला हैं। दुख आर्यान को भी बहुत है, लेकिन आर्यान अपने भाइयों और अपने अब्बू की खातिर ख़ुद को संभाले हुए है। नाजरीन, जब ये लोग जनाज़ा लेके बाहर आते हैं तो जनाजे के पीछे ईमान, महक, फबीहा, मुस्कान, ईमान की अम्मी, राहिम की अम्मी और पूरी फैमिली बाहर जनाजा के साथ पीछे आती है। और जब अंबर का जनाज़ा घर से निकल रहा होता है तो ये सारे लोग पीछे रोते हुए देखते हैं, हसरत से देखते हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। महक और ईमान की हालत बहुत ख़राब होती है। नाजरीन, उसके बाद आप देखते हैं कि जनाजे के बाद जब सब लेडीज़ बैठी तस्बीहात और सिपारा पढ़ रही होती हैं, वहीं ईमान रो रही होती है, महक रो रही होती है, फबीहा रो रही होती है, मानूर भी वहाँ बैठी होती है। आगे पीछे देखती है तो मानूर की माँ उसको इशारा करती है पास आने का। मानूर अपनी उठ के अपनी माँ के पास जब आती है तो अपनी माँ से कहती है, क्या है अम्मा, क्यों मुझे बुलाया है, तू देख नहीं रही वहाँ सब लोग बैठे हैं। मानूर की अम्मी कहती है, मैं कमरे में जा रही हूँ, तू मेरे पीछे आ, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मानूर फिर कहती है कि अम्मा देखो तो सही, मैं सब लोगों के साथ बैठी हूँ, घर वालों के साथ बैठी हूँ। मानूर की माँ कहती है, ये सब तुम्हारे घर वाले नहीं हैं, मुंह संभाल के बोला करो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, और चुप करके कमरे में आके मेरी बात सुनो। वो मानूर को बुरी तरह डांट देती है और मानूर अपनी माँ की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी है। वो अपनी माँ से कहती है कि अच्छा ठीक है, तू चल कमरे में, मैं तेरे पीछे आती हूँ। और मानूर की माँ जब वहाँ से चली जाती है तो मानूर फिर आके बैठ जाती है सब लोगों के दरमियान। और फिर नाजरीन, उसके बाद आप देखते हैं कि जब आप देखते हैं कि मानूर फिर से आके बैठ जाती है तो वहीं ईमान बहुत रो रही होती है। और जैसे वो घुट घुट के रोती है तो उसकी माँ ईमान की उसे गले लगाती है, जिस पे ईमान बिलक बिलक के रोना शुरू कर देती है। और उसकी माँ कहती है, ईमान बेटा सब्र करो, हिम्मत करो, हौसले से काम लो। तो ईमान अपनी माँ को बताती है कि अम्मी बहुत अच्छी थी, मेरे साथ बहुत प्यार करती थी और उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा। इनफैक्ट अगर उनकी कोई बेटी होती तो मैं कह सकती हूँ कि अम्मी मुझे अपनी सगी बेटियों से ज़्यादा मुझे प्यार करती हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ ऑफ़िस में, जहाँ मैंने इतनी तरक्की की, ये सब कुछ मेरे पीछे अम्मी का हाथ था, ये सब कुछ मेरे लिए अम्मी की बदौलत हुआ। मैं इस घर में अम्मी के लिए आई थी। और जब वो ये बात करती है तो मानूर फट से ईमान का चेहरा देखती है और ईमान आगे कहती है कि अम्मी, मैं तो अम्मी के लिए इस घर में आई थी, अब मैं क्या करूँगी। और अगर मैंने जहाँ जॉब में ऑफ़िस में इतनी तरक्की की है, मैंने सिर्फ अम्मी की बदौलत की है कि मेरे पीछे अम्मी का हाथ था। अगर वो मेरे बच्चों को ना संभालती तो मैं कभी भी इतनी तरक्की ना करती। अम्मी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी समझा, बेटियों की तरह मुझे प्यार किया, मुझे हमेशा अच्छी नसीहतें की। अब मुझे समझाने वाला, मुझे प्यार करने वाला यहाँ कोई नहीं रहा। मुझे प्यार करने वाली अम्मी आज दुनिया से रुखसत हो गई। जब वो ये बातें कर रही होती हैं तो महक और फबीहा भी बहुत रोती हैं। और महक भी उसके बाद कहती है कि ईमान ठीक कह रही है, अम्मी ने मेरी औलाद ना होने के बावजूद अम्मी ने कभी मुझे बेऔलादी का ताना नहीं दिया, कभी मेरे अंदर जो कमी थी, जो खामी थी, मुझे जताया नहीं, बल्कि मुझे हमेशा ये कहा कि बेटा खुदा पे भरोसा रखो, खुदा पे यकीन रखो, वो ज़रूर तुम्हें नवाजेगा। और मेरे अंदर इतनी बड़ी खामी और कमी होने के बावजूद अम्मी ने कभी मुझे नहीं जताया, बल्कि बेटियों की तरह मुझे तसल्ली दी, मुझे नसीहत की, हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अच्छी तरह समझाती थी। और आज वो दुनिया से जा चुकी हैं, हम कैसे ये बर्दाश्त करेंगे, मुझसे तो हिम्मत ही नहीं हो रही। महक भी ऐसे बातें करते हुए और अंबर की बातें याद करते हुए और सबके साथ शेयर करते हुए महक बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और जब महक चुप होती है तो महक के बाद फबीहा बोलती है कि आंटी ने मुझे भी कभी बहू नहीं माना, बल्कि हमेशा मुझे बेटी की तरह ही चाहा।
कहीं मेरे आने जाने पे रोक टोक नहीं की, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमें बेटियों की तरह चाहती थी। आंटी बहुत प्यार करने वाली थी हमारे साथ। इनफैक्ट कि मेरी अम्मी जिन दिनों बीमार थी, मैं अपनी मम्मा के पास थी, तो आंटी ने अलमीर की ज़िम्मेदारी भी पूरी ख़ुद से उठा ली थी। और वो मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा कोई बात नहीं, जाओ अपनी अम्मी का ख्याल रखो, यहाँ सब चल रहा है और मैं अलमीर को देख लूँगी, संभाल लूँगी। अम्मी ने अलमीर की सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा ली थी और अम्मी ने कभी भी मुझे कहीं आने जाने से मना नहीं किया। जब कहा कि जाना है कहीं भी तो वो फ़ौरन मान जाती थी और रोक टोक नहीं करती थी। अंबर की तीनों बहुएं इस वक्त अंबर की अच्छाइयाँ याद करके बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं। और फिर इन तीनों की बातें सुन के मुस्कान की अम्मी गले लगाती है ईमान को और फबीहा और महक को कहती है कि तुम तीनों हिम्मत करो एक दूसरे के लिए, इस घर के लिए। तुम तीनों ने अब इस घर को जोड़ के रखना है, इस घर को संभालना है। तुम तीनों ने मिल के आसिफ भाई को संभालना है। अपने ससुर का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि आसिफ भाई अंबर के जाने से बिल्कुल टूट चुके हैं। वो बहुत परेशान है। नुकसान तो सबका हुआ है, लेकिन असल नुकसान आसिफ साहब का है। वो भाई साहब अंबर आपा के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे, बहुत करते थे, अंबर आपा का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन अंबर आपा थी ऐसी कि आज उनके लिए रोना बनता है। ईमान की माँ ईमान, फबीहा और महक तीनों को तसल्ली देती है और साथ नसीहत कर रही होती है घर संभालने की और ससुर का ख्याल रखने की। नाजरीन, जब वो ये बातें कर रही होती हैं तो मानूर को वहाँ से उठ के चली जाती है और कमरे में आके जब देखती है तो कि मानूर की माँ ने कपड़े बेड पे फैलाए होते हैं और बैग खाली किए बैठी होती है। मानूर जब ये चीज़ें देखती है तो कहती है, हाँ अम्मा तूने मुझे क्यों बुलाया बता। और जैसे ही मानूर की नज़र बेड पे बिखरे कपड़ों पे और बैग पे पड़ती है तो मानूर अपनी माँ से सवाल करती है कि क्या हुआ अम्मा, तू कहीं जा रही है। जिसकी माँ मानूर को ज़रा माथे पे बाल डालते हुए देखती है और कहती है, हाँ यहाँ से जा रही हूँ और सिर्फ मैं नहीं जा रही, हम जा रहे हैं, मेरे साथ तुम भी जा रही हो इस घर से। वो कहती है, अम्मा क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तो मानूर की माँ कहती है, मानूर वक्त आ गया है, सब लोग जनाजे में लगे हुए हैं और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यही सही वक्त है हमारे यहाँ से जाने का। मैंने जाके अंबर का कमरा चेक किया है, मुझे अंबर के कमरे से बहुत कुछ मिला है, जेवर और पैसे सारे कहाँ पड़े हैं मैंने सब देख आई हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि मैं बाकियों के कमरे भी चेक करती हूँ, वहाँ से भी कुछ ना कुछ तो लाजमी मिलेगा। तुम ऐसा करो, तैयारी करो और मैं बाकियों के कमरे चेक करती हूँ तो हम लोग यहाँ से आज ही निकल जाएंगे। मानूर कहती हैं, अम्मा अभी ऐसा ना करो, हम लोग पकड़े जाएंगे। जिस पे मानूर की माँ उसे डांट देती है और कहती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं जाके अंबर के कमरे से जेवर और पैसा लेके आती हूँ और बाकी कमरे भी चेक करती हूँ। जिस पे मानूर कहती है, अम्मा देखो अभी रुक जाओ, मैं कह रही हूँ, मेरा माइंड अभी नहीं बन रहा, इस बात को नहीं मान रहा, हम पकड़े जाएंगे। तो मानूर की माँ कहती है, जब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये सही टाइम है, बिल्कुल सब लोग जनाजे में मसरूफ़ हैं, औरतें अलग से लगी परेशान बैठी हैं, इस वक्त किसी को किसी की खबर नहीं है, तो हमारी खबर कौन रखेगा। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं जाके बाकी कमरों से जेवर और पैसे जाके देखती हूँ, तुम अपनी तैयारी करो। मानूर मुसलसल माँ से यही कह रही होती है कि अम्मा देखो ये ठीक टाइम नहीं है, मुझे लग रहा है हम पकड़े ना जाएं, मुझे डर लग रहा है। जिस पे मानूर की माँ उसे कहती है, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, हम कभी पकड़े गए हैं, हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता, बस अब हमारा टाइम आ गया है यहाँ से जाने का और ख़ाली हाथ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। मानूर मैं तुम्हें बता रही हूँ। मानूर परेशान होकर माँ का चेहरा देखती है और माँ उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी तक किसी ने हमें पकड़ लिया है क्या जो ये पकड़ेगा हमें, बस यही सही टाइम है। मर्द हजरात सारे मसरूफ़ हैं जनाजे की तरफ और औरतें भी अपना उधर लगी हुई हैं अंबर के कुरान खानी में, तो बेहतर यही है, हमारे लिए ये बहुत अच्छा टाइम है मानूर यहाँ से निकलने का। अगर ये वक्त आज गुज़र गया तो इसके बाद हम बिल्कुल फंस जाएंगे
اس کے بعد ہمیں نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ بہت اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم یہاں سے اپنا حصہ لے کے سب کچھ لوٹ مار کے ہم لوگ نکل جائیں، پھر ہم ایک نئے شہر جائیں گے، نیا مرغہ پھنسائیں گے۔ مانور پریشان ہوتی کھڑی ماں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے اب سوچ کیا رہی ہو، میں نے تمہیں کہا نا ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ مانور جب کہ اپنی ماں کو مسلسل یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اماں دیکھو ابھی رک جاؤ کچھ ٹائم کے لیے، ابھی ایسا نہ کرو، مجھے پتہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے، اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو میں اس بات پہ بہت ڈری ہوئی ہوں، مجھے یہ سوچ کے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو۔ جس پہ مانور کی ماں اسے کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی پکڑے۔ اس وقت عنبر کی موت کے صدمے میں سب گئے ہوئے ہیں، عنبر کی موت کا ان سب نے دل پہ اثر بہت لیا ہوا ہے، تو سب ایک صدمے میں ہیں، ایک الگ کیفیت میں ہیں، ہمیں اس وقت کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اور تم میری مانو مانور، یہ سب سے اچھا ٹائم ہے، یہی موقع ہے ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم یہاں سے لوٹ مار کر کے نکل جاتے ہیں، ورنہ اگر آج یہ دن گزر گیا نا تو اس کے بعد ہمیں یہاں سے نکلنے کا اتنا اچھا موقع نہیں ملے گا۔ جس پہ مانور ابھی بھی پریشان ہوتی ہے اور اس کی ماں اسے مسلسل یہاں سے آج کے ہی دن عنبر کے جنازے والے دن جب مرد حضرات ادھر مصروف ہیں جنازے میں اور عورتیں ادھر ٹوٹی پھوٹی بیٹھی ہیں، سب کی حالت خراب ہے، تو مانور کی ماں مسلسل مانور کو آج ہی کے دن نکلنے پہ زور دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ آج کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس تم یہاں اپنی تیاری کرو اور ہم اس بیگ میں سارے پیسے اور زیور رکھ کے یہیں سے نکل جاتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں چلے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت سب ایک صدمے کی، ایک سکتے کی سی حالت میں موجود ہیں، سب پہ ایک صدمہ چھایا ہوا ہے، سب کی طبیعتیں اور حالت بہت خراب ہے، وہ لوگ بہت پریشان اور ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ایسی حالت میں وہ ہمارے بارے میں نہیں سوچیں گے، کیونکہ عنبر کی موت نے سب کو ہلا دیا ہے، وہ ابھی سب لوگ صدمے میں ہیں، تو مانور یہ بہت اچھا موقع ہے یہاں سے نکلنے کا۔ مانور کی ماں جو ہر وقت چوری چکاری اور لوٹ مار کے چکر میں تھی، آج اس کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آیا اور وہ اپنی بیٹی کو یعنی مانور کو مسلسل کہہ رہی ہے کہ ایسا کرو یہاں سے نکل ہی جاتے ہیں، یہی سب سے اچھا ٹائم ہے، اس کے بعد ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ تو مانور خاموش کھڑی ماں کا منہ دیکھ رہی ہے۔